Get-together function of All India Memon Jamaat Federation was held at Islam Gymkhana, Mumbai. Mr. Imran Fruitwala and Mr. Nizamuddin Ryan compared the function. 250 members were present, including prominent dignitaries of community. Function was commenced with recitation of verses from the Holy Quran by Shabbir Bhai of the, followed by Sadka. Mrs. Razia Bai Chasmawala delivered welcome address and greeted the members present. All India Memon Jamaat Federation. Anthem and Memon Times anthem was played. Memon Times Zakat Appeal and Lila Appeal was inaugurated by Mr. Sharif Memon, Sufi Farooq and Mrs. Farida Bai Agbotwala respectively, along with all dignified members. 2 initiatives launched by the Youth Wing: tobacco-free, addiction-free Memons and Iftar at orphanage and old age home, and 30 days 30 teams. Mr. Iqbal Memon officer briefed the gathering about the activities and various schemes of AIMJF in detail. He further stated that the AIMJF is taking utmost care while disbursing the funds, that he requested all to fill the Zakat and Lila appeal given to them and donate their Zakat and non-Zakat Lila fund to All India Memon Jamaat Federation generously, through which AIMJF will be able to assist poor, deserving brethren more effectively and efficiently. Main aim of AIMJF is that Memon Zakat taker should become Zakat giver. Unity is strength of community and people should work collectively with cooperation and concentrated efforts. Hayat leke chalo, kainat leke chal, chalo to sare zamane ko saath leke chalo. May Almighty Allah give us all best ajr. Ameen. Jazalika khair. Speech with regard to fund appeal was given by following members: Mr. Yusuf Abrahani, Mr. Qasim Imam, Mr. Iqbal Memon officer, Mr. Nizamuddin Rain, Mrs. Razia Bai Chasmawala. Following personalities were felicitated with memento and shawl: Mr. Sharif Memon, Ahmedabad, Dar ul Madina English School Managing Director Mr. Salman Syed, Mr. Mohammad Amin Bhila, Regional President WMO Far East Chapter, Mr. Abdul Razak Osman, Regional Treasurer WMO Far East Chapter, Mr. Haji Iqbal Sattar, RMC Member WMO Far East Chapter, Mr. Abdul Qadir Mahmood, RMC Member WMO Far East Chapter, Mr. Mohammad Yasin Bhila, Member of Permanent Zakat Committee, Mr. Sabir Osman Singapore, Mr. Cameron Ghani, Ms. Nabila Anwar Pishori, Mr. Mahur Bai Foundation, Mr. Firoz Khan Canada, Mr. Haseen Aghadi, Mr. Aziz Machiwala conveyed vote of thanks and function dispersed it with Dua-e-Khair followed by dinner. ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और मेरे अजीज दोस्त इकबाल मेमन ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये फेलिसिटेशन मेरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पिछले 8 सालों से इंडिया से आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके रहने खाने पीने का इंतज़ाम मस्जिद के करीब करते आए हैं, फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, आप सब लोगों को जान के खुशी होगी, अब तक 200 से ज़्यादा मुसलमान लड़के लड़कियों को नौकरियों पे लगा चुके हैं। जब से मेमन दुनिया में आया है, रिकॉर्ड आज तक का यही है कि जहाँ मेमन बसता है वहाँ पहले मस्जिद बनती है, फिर स्कूल बनता है, फिर मदरसा बनता है और फिर बाद में हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ जहाँ मेमन पहुँचेगा वहाँ अच्छा काम जरूर करेगा। इकबाल भाई के बारे में तो जितना कहो उतना कम है। मैं उनको कब से सुन रहा था कि कम से कम उनकी अपील के अंदर 10 या 15 बार रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप हमारी कौम को मदद कीजिए, जबकि ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हम सबका फ़र्ज़ है कि जहाँ हमारी कौम का कोई इंसान परेशान है तो जिसको अल्लाह ने नवाजा है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे बढ़ के उसकी खिदमत करे, उसका साथ दे। और हमारे बीच में हसीन अगाड़ी साहब भी हैं, एहसान गाड़ावाला साहब थे, हमीद तातानी साहब थे। ये सब वो लोग हैं कौम के जो कौम के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और मुझे फ़ख्र इस बात का है कि मैं भी मेमन हूँ और लोग जब तारीफ़ करते हैं मेमन कौम के लिए बड़ी खुशी होती है। मैं शुरू करूँगा तो बहुत सारी बातें निकल सकती है। इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो इकबाल ऑफिसर साहब जो आज बहुत खुशी थी कि 3 चैप्टर जा प्रेसिडेंट WMO इलाज भेगा थे आयूं कामरान कनी शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो आज की शाम मेरे साथ को होस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं नॉन पॉलिटिकल टर्म में उनके लिए बोलूंगा। पॉलिटिकल टर्म में तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो उनको जानता नहीं है। नॉन पॉलिटिकल टर्म में भी ये बोलूंगा कि वो जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनको सुनने के लिए लोग अपना काम छोड़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आज पर्सनली आए और वो मेरे साथ को होस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स माई प्लेजर टू होस्ट विद हिम। मैं बुलाना चाहूँगा निजामुद्दीन रहीम साहब को कि वो आए और मेरे साथ को होस्ट करें प्रोग्राम। हमारी बिरादरी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए अगर इस बिरादरी के लिए कोई नगमा लिखा जाता है तो उसकी हैसियत भी इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी ही है। कहते हैं कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन इज योर टाइम, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग योर टाइम यू आर गिविंग द पोर्शन ऑफ योर लाइफ विच यू विल नेवर गेट बैक। जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि रेनबो का एक अकेला रंग आसमान में दिख जाए तो दिल को लुभाता नहीं है, लेकिन वही रेनबो अगर सतरंगा हो जाए तो दिल को छू लेता है। आज आप इस गैदरिंग में देख सकते हो कि इकबाल भाई की यही खूबी है कि वो किसी भी एक रंग को खुशामदीद नहीं करते, लेकिन हमेशा 7 रंगों के रेनबो को पसंद करते हैं जो दिल को छू जाए। सारी कम्युनिटी को एक एजुकेटेड कम्युनिटी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही ज़कात के मुस्तहक जो है उसको भी ज़कात लेने से बाहर निकालने का काम भी हमें करना जरूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी एक दिली जज्बात बना लो कि भाई हम हमारी कम्युनिटी को ज़कात के मुस्तहक जो है उनको बाहर निकाल के काम धंधे पे लगा रास्तों पर साथ चल सके, ऐसे हम सफर चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के तमामी ओहदेदार का लगभग 4000 मेरे टेन्योर में मैं सदर बना तो 4000 मकान की इमदाद की गई और कंप्लीट मकान बना दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी चीजें आपके ताउन से हुई है।
ये मेरे और मेरी कमेटी के बस की बात नहीं है। ये आप लोगों ने दिल खोल करके अतिया दिया है और भरोसा किया है, एतमाद किया है, इसके लिए हम ये काम कर पाए हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का साथ है कि हम ये काम कर पाए हैं। उसके बाद मेडिकल का 1.5 करोड़ का हर साल अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है और मेडिकल का काम ऐसा है कि मुझे लगता है कि शायद अमीन भाई शायद ही कोई ऐसी संस्था होनी कि 24 कलाक के अंदर 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेशन पोस्ट से कोरियर से भेजने की जरूरत नहीं है। आप ईमेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, हॉस्पिटल का किस बेड में है, क्या बीमारी है उसको और क्या कोटेशन है, आपको दूसरे दिन चेक बन करके मरीज को मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेमन लेने वाला कभी अच्छा नहीं लगता है। मेमन को अल्लाह ताला ने हमेशा देने वाला बनाया है। वक्त ऐसा है कि मेमन खुद ले रहा है, ये मजबूरी है, मगर इसकी जिम्मेदारी, इसका फर्ज जो है हमको है कि हम हमारी बिरादरी को, हमारी कौम को पांव पे खड़ा करें। 10% ज़कात अगर मेमन अपनी जमात को दे, सिर्फ 10%, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, अब जो रुपया ज़कात निकलती है, हमने हिसाब लगाया, अब जो रुपया ज़कात मेमन की निकलती है, कहां जाती है, सब किस तरफ जाती है, सिर्फ 10%। मैं कहता हूं, अपील करता हूं कि 10% हर मेमन, 15 लाख मेमन है, 15 लाख की फैमिली कितनी हुई, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 लाख, 3 लाख, 3 लाख फैमिली अगर ये तय कर ले कि 10% ज़कात लोकल जमात को देनी है और 10% जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को देनी है। ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, बहुत आसान तरीका है। 80% बचता है, वो 80% के अंदर आप अपने रिश्तेदार को, पड़ोसियों को, मदारिस के अंदर जहां आप चाहते हैं वहां आप दे सकते हैं। 80% अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का गेट टुगेदर हुआ। यहाँ पर पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल है मेमन कम्युनिटी के, सब आए थे। यहाँ तक कि मेमन कम्युनिटी के बाहर के भी कुछ लोग आए थे और सब ने अप्रिशिएट करके गए जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन काम करता है। जितने भी लोग थे सब जिम्मेदार लोग थे जो अपनी कौम के लिए भी जिम्मेदार है और बहुत अच्छा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में, और पर्सनली भी बहुत अच्छा करते हैं। एक क्रीम क्लास के लोग बोलेंगे, हर कोई यहाँ पर आया, सब ने काम जो हो रहा है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का वो अप्रिशिएट किए। और साथ में जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर जो नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लोगों को एंगेज कर रहे, लोगों को जोड़ रहे साथ में और काम करे जा रहे ना, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था। कुछ नए लोग भी आए थे जो कभी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में नहीं आए थे, वो लोग भी आके अप्रिशिएट करके गए और वो लोग भी ये बोले कि हम जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमने दुनिया में नहीं देखी है जो इतना ट्रांसपेरेंसी से काम करती है, जिसमें सब इतने हम्बल है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट एक एक चीज़ बताए जा रहे हैं सबको, तो ये चीज़ें हो रही है और एक अच्छा मैसेज गया है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से और हमारे पूरे बोर्ड से, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर से कि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में। अभी रमज़ान आ रही है, ज़कात, लीला, ये सब चीज़ें दे, बिकॉज तो ही हमारी कम्युनिटी आगे जाएंगी। अगर सबका सपोर्ट होगा तो ही हमारी कम्युनिटी आगे जाएगी। तो ये चीज़ों की भी आज अपील हुई है और लोगों ने बोले कि वो ज़रूर जुड़ेंगे, बिकॉज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में सिर्फ छोटे छोटे काम करना है, सिर्फ हाउसिंग हेल्प देना है, मेडिकल हेल्प देना है, इतना नहीं करना है। हमारे प्रेसिडेंट का एक विजन है कि बड़े काम करना है हमारे को यूनिवर्सिटीज़ बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है और बहुत से काम करना है हमारे को। तो वो काम जब तब कर पाएंगे जब जो हमारी जमातें, जो चैप्टर्स है हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अंडर में 500 चैप्टर्स, वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। वो अपने पैर पे तब खड़े होंगे जब उनके अंदर जितने मेंबर हो, जितने घर उनके अंडर में, वो उनका सपोर्ट करेंगे, वो खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर से देंगे उधर भी। और फेडरेशन को भी ये हमेशा कहते हैं कि जमात को 10% दो और 10% फेडरेशन को दो। तो इस तरीके से होगा तो हमारी कम्युनिटी एकदम प्रॉस्पर करेंगे इंशाल्लाह। हमारी मेमन कम्युनिटी में बहुत सारा टैलेंट भी है, बहुत पोटेंशियल भी है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ्लोरिश हो सकती है, बस सबका सपोर्ट होना चाहिए। ये एक मैसेज गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेसिडेंट से और सबसे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। आप लोग